حاضرین کرام، ہم سب مسلمان ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات احسن الخالقین ہے۔ ازل سے لے کر آج تک اور آئندہ آنے والی قیامت تک اللہ پاک نے اس کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے، وہ مٹی کے ذرات ہوں، وہ درخت ہوں، وہ پانی ہو، وہ حشرات الارض ہوں، چوپائے ہوں، درندے ہوں، چرنے والے جانور ہوں، یا اشرف المخلوقات یعنی بنی نوع انسان ہو، اللہ پاک نے جو بھی اس کائنات میں ایک ذرہ بھی تخلیق کیا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ ازل سے لے کر قیامت تک اس چیز کی افادیت، اس چیز کے فوائد، اس چیز کی اہمیت اس کائنات میں ختم نہیں ہو سکتی۔ Let us see how this type of water affects human blood. The doctor is drawing blood from a patient's finger. Using a special microscope, we shall be able to see the condition of the body from this drop. These are red blood cells and they've lost their electrical charge, so they're all stuck together in a formation called a rouleau. There's a huge symplas. Symplas are associated with heart disease and arthritis and lung disease and many other conditions that could be coming in the future. The doctor asks the patient to drink a small amount of structured water. فصیح صاحب میرے پاس ایک پیشنٹ کو لے کر آئے تھے، میں کلینک میں تھا، اس وقت میری خود کی پانی کی کمپنی تھی سراٹوگا، تو فصیح صاحب آئے، ان کے ساتھ جو آئے تھے ان کو ٹریٹمنٹ دی، پھر میں نے ویسے ہی پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا پانی کا کام ہے۔ تو میرا جو پانی کا کام تھا وہ میں نے کسی خاص مقصد سے شروع کیا تھا کہ بہترین پانی لوگوں کو مل سکے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میرا پانی سب سے بہتر ہے، میں نے پوچھا تھا کیوں؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ میرے پانی میں آکسیجنیشن سب سے زیادہ ہے۔ میرے بات سمجھ میں آئی۔ میں اس زمانے میں بلڈ پریشر کی ریگولر دوائیں کھاتا تھا۔ اس کے دوسرے دن سے میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس اپنا پانی بھیجیں، تو انہوں نے اپنا پانی میرے پاس بھیجنا شروع کیا۔ جس دن میں نے ان کے پانی کا پہلا گلاس پیا، میں نے اپنے بلڈ پریشر کی گولیاں چھوڑ دی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پرانی بات ہے کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کے شہر میں ایک پانی آیا ہوا ہے جو آپ کی طبیعت کو بہتر کر سکتا ہے۔ اسی دن میں نے انہیں لے کر پیور اینڈ کیور پہنچا۔ انہوں نے سے مجھے ایک بات کہی فصیح صاحب نے کہ یہ پانی جو ہے پیور ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ منرل واٹر، آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارے جسم کو منرلز جو ہے وہ فوڈ سے ملتے ہیں، پانی میں منرلز کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پانی میں منرلز ہوں گے تو وہ آپ کی کڈنی کو اور آپ کے اندر کے اعضاء کو خراب کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پیور اینڈ کیور ایک جاپانی کمپنی ہے، ہمارے سب کا ایمان ہے، یقینی ہے کہ جاپانی کپڑے سے لے کر جاپانی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، یہ تو ہمارا یقین ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جاپانی چیزیں جو بنتی ہیں وہ پیور ہوتی ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ گاڑی اور بقرے اور دیگر چیزوں کے علاوہ
पानी भी जापानी आ गया। और मुझे फर्क उस वक्त पड़ा जब ये जिम्मेदारी बन गई इस हवाले से कि कुरान पाक के अंदर बारिश के पानी का जिक्र है और कुरान पाक में जिक्र 52 मरतबा है और उसको इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि ये शिफा है, ये खुशहाली है, ये सेहतयाबी है, ये तवानाई है। तो जो मेरे दोस्त फसी शाह साहब और उनकी टीम, उनके जनरल साहब हमारे और हमारे कमोडोर साहब, ये जिस बहादुरी से बगैर पैसे बनाए ये मेहनत कर रहे हैं, ये एक नायाब मामला है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने आखिरी पैगंबर को उतारा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन पर फिर कुरान उतारा और वो रहमतुल लिल आलमीन है और ये कुरान सबके लिए है, पूरी कायनात के लिए है। और उसमें जो अमराज हैं, जो बीमारियां हैं, उसका हल दिया गया और वो तमाम हल बारिश के पानी से मुताल्लिक है। कि आपको ये बात बताना चाहता है कि हम कारोबार करते हैं, पेरों की ओर कारोबार करता है, कारोबार पेरों को ज़कात नहीं देता, ज़कात लेता है। हम कारोबार करते हैं, लेकिन हम कारोबार इस तरह करते हैं जिस तरह इरशाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप आटे में नमक की तरीके से प्रॉफिट हासिल करें, यानी प्रॉफिट आप इतना हासिल करें जितना आपके एक्सपेंसेस हैं, उनको मीट करने के लिए प्रॉफिट हासिल करें। प्रॉफिट इसलिए हासिल नहीं करें कि आप ओवरनाइट बिलियनर बन जाए। तो ये एक पॉइंट है जो बहुत अहम है और पेरेंट केयर है वो इस हवाले से अपना काम जारी रखे हुए है और वो इस बात को प्रोपेगेट करना चाहता है कि आप जो भी कारोबार करते हो उसको महज इंसान की फलाह व बहबूद के लिए करिए। जिस किस्म का भी काम आप कर रहे हैं उसको इंसानियत की फलाह और बहबूद से हट के करने का कोई फायदा नहीं है, वरना फिर वो जो आपने फरमाया है कि कुरान पे अमल करने का जो मामला है वो दुनिया में देखने को नहीं मिलता है। पेरेंट केयर ने आपको कुरान के उन आयात पे अमल करते हुए दिखाया है, ये बताया कि ये अमल कर रहे हैं। तो अगर हम कारोबार कर रहे हैं और हम उन आयात की रोशनी में इरशाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के और उनकी अहकामात की रोशनी में अगर हम उस तरह कारोबार नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब उससे कोई फायदा नहीं। तो ये एक बुनियादी बात है जिसको मेरे ख्याल हमें जहन में रखना। मैं इस उमरा साहब का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। अभी एक छोटी सी बात देखिए, आपको अभी मिलोसेविच की एक छोटी सी फिल्म दिखाएंगे जो दुनिया का नंबर 1 टेनिस स्टार है। सर उसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। मुझे यकीन है कि अगर ये इनको समझ में आ सकती है, शायद मेरी बात पर नाराज नहीं होइएगा, या अगर मिलोसेविच यहां होता मुझे यकीन है कि वो हमारा साथ दे रहा होता। उसकी वजह है जब ये पहली दफा कोरोना आया और हमने इस पर काम करना शुरू किया, साइंटिफिकली इसको एलोबरेट किया, तो हमें अंदाजा हुआ कि बेसिकली खेल ऑक्सीजन का है और ठंडक का है। हमने क्या किया, हमने गर्म पानी पिलाना और वो पूरा निज़ाम जो है हुआ क्या, 4-6 घंटे में चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो गई, क्योंकि आपको वो साइंटिफिकली वजह बताइए कि वो करता क्या है, तो ब्लड डिस्पर्स करता है। ये खून जब जाता है तो ये पानी जब जाता है तो ये चीज़ों को आपकी बारीक बारीक नसों में ये जो आपके क्लॉट्स हैं उनको तोड़ देता है। इतनी सी बात, सिंपल सी बात थी। हमने कोशिश की, मैं बात लेकर आऊँगा इस उमरा साहब। अभी थोड़े दिनों पहले इनका 23 बड़ी कंपनियों का एक इनका प्रोग्राम था जापान का, और इनकी मेहरबानी ये बुला लेते हैं, हम इस काबिल नहीं है। तो जब प्रोग्राम हुआ तो उसकी फीसिस की बात हुई। हम लोग वैसे ही आप सुन ही लिया आप लोगों ने कि हम वो काम ही नहीं कर रहे जिससे इनकम का बहुत बड़ा वो हो। तो हमने इनसे अर्ज की कि हम पैसे नहीं देंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। इनकी बड़ाई है, इन्होंने फौरन हमें ये मैसेज पहुंचवाया, सर आपको जरूरत नहीं है, आप आ जाएं। हम चले गए। अच्छा, उससे पहले फिर 1-2 बातें हुई कि भाई वो उन्होंने कहा हमसे कि आप वो मुंह पर मास्क लगाएंगे। हमने कहा सर हम कोरोना से ही कर देते हैं, हम मास्क कैसे लगाएं? अगर हम कोरोना से ही कर रहे हैं
तो हम मास्क लगा के, तो इसका मतलब हम अपनी बात से उलट जाएंगे। हमने कहा सर हम ये काम नहीं करेंगे। सर हमें वहां से एग्जेम्पशन मिली कि आपकी कंपनी बगैर मास्क के 5 स्टार होटल के अंदर घूम रही थी और लोगों को बताती फिर रही थी कि देखो यार पानी से हम सही कर रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दरअसल ये फसी साहब के साथ मेरी मुलाकात थोड़ा सा 13 साल पहले हुई, जब ये उन्होंने ये प्योर एंड केयर कंपनी है उसको तश्कील दी थी, और इस प्रेस क्लब में मुलाकात हुई और उन्होंने यानी हमें कुछ यानी तजुर्बा करके दिखाया था ये पानी है कितना साफ है, इस तरह का जो तजुर्बा करके ये हमें दिखाया था। और ये कंपनी है दरअसल जापान में नकात्रा नानी शहर है, गिहु प्रीफेक्चर में है, वहाँ की एक छोटी सी कंपनी है, उसी से मशीनें ले के इधर आई हैं और साफ पानी फराहम कर रही हैं। और साफ पानी का मतलब ये है यानी सिर्फ साफ नहीं, उसी में यानी ऑक्सीजन भी ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है और साफ पानी है